Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 12. Now start. Today we start new chapter number 5. Continuity and differentiability is a very important role in differential and integral. So first we introduction of continuity. The name of continuity, that means continuous. Now in a graphically, suppose one line is the always continuous for every real or real points. That means suppose this line is the break for some points. It is a straight line, but this straight line is the break on the some real number. That means this line is not a continuous for such a points. But it is continuous for this and for this one. We introduce the introduction of continuity first, because continuity के बेसिस पे हम डिफरेंशियल स्टार्ट करेंगे. तो नॉलेज ऑफ कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूस ऑफ ए फंक्शन ये आपको जरूरी है. तो यहाँ मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको चेक करना हो किसी रियल नंबर्स के लिए, तो आपको यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू एट x इक्वल टू c, वेयर c इज बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट c पर therefore this function fx is continuous at x equal to c. तो यहां पर हम यहां पर ये कह दिया कि ये x equal to c पर कंटिन्यूस है. अगर हम बात करते हैं इस एग्जांपल्स के बेसिस पे, दे आर गिवन दैट value of function is 1 when x is less than or equal to 0, and value of this function is 2 when if x is greater than 0. So first check for less than 0. When x is less than 0, it is the first cases. अब less than 0 का मीनिंग क्या हुआ? Means you take the all the points for less than 0, means all the real numbers. That means suppose we let x is equal to h, where h is belongs to real number, is real. Less than 0 is x equal to real, so that means take the x equal to h. तो आपको सिंपली यहां पर फाइंड आउट करना है फर्स्ट एफ एच. h is less than 0 equal to 0. So first you find that its limit is the left hand limit. So what is the left hand limit? At x equal to h. आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर x लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी. तो दैट मीन्स fx इज इक्वल टू 1. सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए भी लेंगे तो वो लेस देन 0 ही होगा. तो लेस देन 0 के लिए वापस आप राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो देयरफॉर h इक्वल टू 0 वेयर इट इज द राइट हैंड लिमिट. राइट लिमिट मीन्स fx इज इक्वल टू 1. अब बात करते हैं थर्ड. एट h इक्वल टू 0. h इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स वहां पर भी फंक्शन जो है fx जो है वो इक्वल टू 1. ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है. और कंटिन्यूस के लिए प्रूव करने के लिए आपको सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट द वैल्यू, फंक्शन ऑफ वैल्यू at the exact point is these three all are equal, that means we say that the function is continuous at given point.
सो यहाँ पे तीनों ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं therefore fx is continuous at x is less than 0. अब अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन 0 के लिए, तो सेम प्रोसेस आपको 0 यूज करना है greater than 0. Greater than 0 means you take the same x equal to h where h is this times greater than 0. तो आप क्या वैल्यू लेंगे? For h is greater than 0, you take the fx equal to 2. Again, greater than 0 is right hand limit is also 2. And at exactly x is equal to 0, then equal to 0 is the value is 1. एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको. लेफ्ट लिमिट x is less than 0. What is the fx? Sorry, x is greater than 0. So now is 2. And right limit यहाँ पर हम x को h ले रहे हैं और x ग्रेटर देन 0, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, जिसे मैंने मान लो एक लाइन ड्रॉ की और h पॉइंट यहाँ है और लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए ये x है और ये ग्रेटर देन 0 जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट 2 लेना है, तो वहाँ पर आप ये भी fx क्या लेंगे 2. बट 8x इक्वल टू एग्जैक्टली 0, अगर वो एग्जैक्ट 0 हो जाता है तो यहाँ आप fx की वैल्यू क्या लेंगे, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 के लिए 1 लेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे fx is not continuous at x equal to 0. इस बार हमने कहा कि वो x equal to 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा एग्जैक्टली, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए 2 आ रहा है. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वो रॉन्ग, एग्जैक्टली एट पॉइंट पर उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग है, ग्रेटर देन के लिए अलग है, लेस देन के लिए अलग है. लेकिन खाली ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो वहां पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू तो इक्वल हैं, बट लेस देन के लिए हम बात करते हैं तो वो रॉन्ग है. तो यहाँ हम फंक्शंस को कहेंगे इज नॉट कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट, तो अब ये तो सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन किया है. एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं इसी इंट्रोडक्शन के साथ में. मैंने एग्जांपल के बेसिस पर मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस. नाउ fx इक्वल टू दिस टाइम 1 where x is not equal to 0 and for x equal to 0 is value is 2. So x not equal to 0, that means you take the less than 0 is 1 and greater than 0 is 1. But at x equal to 0 you take the value is 2. This is very simple. When x is less than 0, what is fx? Is equal to 1. And this is the left hand limit. मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं. नाउ सेकेंड, when x is greater than 0, what is fx? जब वो नॉट इक्वल टू है तो यहां पर ग्रेटर देन के लिए भी यही वैल्यू होगी, तो fx इज इक्वल टू 1. means it is right hand limit. Right limit. Third, when s is equal to 0, what is fx? When x equal to 0, fx is equal to 2. So 1 is equal to 1 but not equal to 2. तो हमने कहा अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तीनों वैल्यूज अगर इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन पर्टिकुलर उस पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट 0 है, उस पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट, तो नाउ हियर दीस टू वैल्यूज आर इक्वल, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स आर इक्वल, बट एट द एग्जैक्टली पॉइंट value is not equal. That means this function is not continuous for
एट x इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशंस थी इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटिन्यूस। ये आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपको एक बार मैं एग्जाम्पल्स के साथ में चलते हैं अपन, और एग्जाम्पल की बेसिस पर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, मैं कहता हूँ जितने भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसका मीनिंग और भी आपको लगेगा ये क्या है। जैसे मेथड, जैसे भी आप एक मेथड को बार बार यूज करते हैं सेम क्वेश्चंस के लिए, तो आप उस क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं और आपको मेथड भी याद हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ हियर एग्जाम्पल नंबर 1 इज गिवन, check the continuity of the function the given by fx equal to, example number 1, and now here fx is equal to 2x plus 3 at x equal to 1। यहां पे हमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि चेक दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। मुझे इस पॉइंट 1, अब यहाँ 1, व्हाट इज द 1 इज द एनी रियल नंबर। इस रियल नंबर पर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस। वैसे डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एंड इट इज आल्सो पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री बिकॉज पावर ऑफ x इज द 1। डेफिनेशन के बेसिस पर आगे चलकर हम कुछ एग्जांपल्स में हम प्रूव भी करेंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है और इसको हमें प्रूव करना है एवरी रियल नंबर। अब चाहे यहाँ 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, -1, -2, -3, यू टेक द एनी रियल नंबर, एनी रेशनल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। रियल नंबर आ गया तो उसमें सारे नंबर्स आ गए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उन सभी फंक्शंस के लिए मुझे इसको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट रियल नंबर, कुछ केसेस को छोड़कर। तो चलिए यहाँ हम फर्स्ट फाइंड द इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे लेफ्ट लिमिट। अब यहाँ लेफ्ट लिमिट का मीनिंग क्या होगा, मीन्स यू टेक द x इज लेस देन 1। अब ये इक्वल टू 1 के लिए है, दैट मीन्स हम इक्वल टू 1 का मतलब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर सपोज आपने x इक्वल टू 1 लिया, तो यहाँ x है, x इज इक्वल टू 1 ये है, and left means this one and right means this one। अगर पर्टिकुलर फंक्शन एक ही है तो इक्वल टू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू वही होगी। ये आप ध्यान रखें। इज f इज 1 इज इक्वल टू 2x को आप जस्ट पुट कर दें 1 and plus 3 and this is equal to 5। It is the first। Second is right limit। इसको ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ अगेन f1 जनरली राइटिंग इक्वल टू 1 मीन्स लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। यहां पर मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। लेस देन 1 के लिए भी वही पॉलिनोमियल है और इक्वल टू 1 के लिए भी वही है और ग्रेटर देन के लिए भी वही है। तो ऑब्वियसली कि ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 और x लेस देन 1 और राइट ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू सेम ही होगी। वापस में x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ and plus 3, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको मिलेगा 5 and नंबर 2। एंड नाउ एट x इज इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर उसकी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो उस वैल्यू जो होगी वो होगी वापस से 2 into 1 और प्लस 3, वैल्यू वही पुट करेंगे और 5 नंबर 3। आपने क्या देखा, इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, या आप शॉर्ट में इसको इतना ना लिखकर लेस देन 1 and equal to f greater than 1 and is equal to f1। So आप लिख सकते हैं f is continuous at x is equal to 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपली ये था इंट्रोडक्शन और ये मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया है।
कुछ और एग्जांपल्स के साथ में हम चलते हैं, उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस वही होगा जब ये तीनों पार्ट आपस में, जैसे अपने इससे पहले जो एग्जांपल्स मैंने लिया था उसमें एक पॉइंट एग्जैक्टली उस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल नहीं थी, बट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल था। तो यहाँ तीनों इक्वल होने चाहिए, यही उसकी डेफिनेशन है। अगर तीनों में से एक पार्ट भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। नाउ फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन ऑलरेडी। Now examine whether function is given by f(x) equal to x square is continuous at x equal to 0. x equal to 0, 0 square is 0 and less than के लिए भी 0 square and greater than के लिए भी 0 square, because x square is the again polynomial and every polynomial function is continuous at every real number. ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपली आप खुद भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। Discuss the continuity of the function of given by f(x) equal to. Now this time function is given by the mod of x. And now here mod of x, आपको continuity आपको चेक करना है at x equal to 0. Particularly at x is equal to 0 के लिए। तो पहले इस फंक्शन को हम ब्रेक करते हैं